السلام علیکم۔ سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے یورگوس کمانڈر اور اندریاس کمانڈر کا نیا منصوبہ دیکھا اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات حاجی نظام الملک اور سپاہی سانجار سے ہوتی ہے۔ سانجار کہتا ہے، دائیے اعلیٰ جلد ہی مجھے بیلٹ باندھیں گے۔ بہرام نے مجھے یہ بتایا ہے، ہم ان کی کچھاڑ کو تباہ کر کے مقدس ایمانتوں کو بچائیں گے، ہم ان کے کھیل برباد کر دیں گے۔ آپ مجھے کہتے تھے کہ میں آگ میں کود رہا ہوں، لیکن ہم اس آگ سے لوہے کی طرح نکلیں گے انشاءاللہ۔ حاجی کہتے ہیں، چاہے تم باہر آ بھی جاؤ گے تو کیا تم کبھی ان لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتے جنہیں تم شاید اپنی ہی آگ میں جلاتے ہو؟ امیر التبر کی بیٹی تورنا، میں جانتا ہوں کہ تم اس پر اپنا دل ہار بیٹھے ہو۔ سانجار کہتا ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ حاجی کہتے ہیں، تمہارے پاس بہت بڑا راز ہے اور تم خطرناک فرائض سر انجام دے رہے ہو۔ خاص طور پر باطنیوں کی کچھار کو تباہ کرنے کے بعد تم ظاہر ہو جاؤ گے، پھر تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ بدقسمتی سے تم نے اسے معلومات بھیج کر اسے بھی اس میں شامل کر لیا ہے۔ اگر وہ تمہارے تعلق کے بارے میں جان گئے تو باطنی شلمزار میں اس کے ساتھ خوفناک سلوک کریں گے، اور دوسری طرف بازنطینیوں کا مسئلہ بھی ہے۔ تمہارے دشمن اس کے ذریعے تمہیں جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے، اور ایک بہادر کی کمزوری اس کی محبت ہوتی ہے، وہ تم پر اسی محبت کی گولی سے وار کریں گے۔ سانجار کہتا ہے، آپ نے ہمیشہ میری زندگی اور میرے فرائض کے بارے میں فیصلہ کیا ہے، کیا اب آپ میرے دل پر بھی حکمرانی کرنا چاہتے ہیں؟ حاجی کہتے ہیں، محبت تم جیسے بہادر کا بندھن بن جاتی ہے، اور مجھے اس چیز کی فکر ہے کہ یہ ایندھن مستقبل میں تمہیں اندھا کر دے گی۔ سانجار کہتا ہے، میں اپنی آگ کو بہتر جانتا ہوں، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں اپنی محبت کو آگ میں ڈال دوں گا؟ حاجی کہتے ہیں، وہ ایک امیر کی بیٹی ہے۔ سانجار، وہ تمہیں کیسے ملے گی؟ کیا امیر التبر تمہیں اپنی بیٹی دے گا؟ سانجار کہتا ہے، اگر وہ امیر کی بیٹی ہے تو میں بھی ایک ملک ہوں۔ حاجی کہتے ہیں، لیکن تم رازوں کے ساتھ مہر بند ملک ہو، اور شاید وہ مہر زندگی بھر نہیں کھلے گی۔ ناممکن چیزوں کو ممکن بنانے کی کوشش مت کرو سانجار۔ سانجار کہتا ہے، یہ کس طرح کا راز ہے جس نے پہلے مجھے اپنے بابا سے الگ کیا، پھر میری محبت سے ہمیں سلطنت اپنے بابا سے ورثے میں ملی ہے، لیکن کیا قسمت بھی ہمیں بابا کی طرف سے ورثے میں ملی ہے حاجی؟ حاجی کہتے ہیں، تمہارا راز بھاری ہے، تمہارا فریضہ مشکل ہے، اور تمہارے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ آج یہ محبت تمہارے دل پر بوجھ ہو گئی ہے، وہ تمہیں اس لڑکی کے ذریعے جال میں پھنسائیں گے، یا تم اس لڑکی کی موت کا سبب بنو گے۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، یہاں سے کوئی واپسی نہیں ہے سانجار۔ اگر آج تم اپنے دل میں اپنی محبت کو دفن نہیں کرتے تو کل اپنی محبت کو زمین میں دفن کرنا پڑے گا سانجار۔ سانجار یہ سن کر بڑا پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ حاجی نظام الملک سانجار کے کندھے پر تھپکی دے کر یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ پھر دوستوں دوسری جانب تورنا خاتون دکھائی جاتی ہیں، جو کہ اپنی ماں کی قبر پر آتی ہیں اور کہتی ہیں، چاہے آپ کی روح اس زمین سے ہجرت کر گئی ہے، لیکن آپ ابھی بھی میرا واحد بھروسہ ہے میری ماں، آپ میری واحد پناہ گاہ ہیں۔ ایک بہادر آدمی میرے دل میں ہے، جب بھی میں اس کی انگارے کی طرح جلتی ہوئی آنکھیں دیکھتی ہوں تو میں اس کائنات میں اپنی انتہا کو بھول جاتی ہوں۔ ہم نے ابھی اپنے دل کی بات کو الفاظ میں نہیں ڈھالا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر دوستو تورنا خاتون مسکراتی ہوئی اپنا نیلا رومال نکالتی ہیں، جس پر انہوں نے ایک پھول بنایا تھا۔ تورنا خاتون کہتی ہیں، اسی لیے میں اس دن کا بےتابی سے انتظار کر رہی ہوں جب ہم اپنے پیار کا اظہار کریں گے۔ جب وہ دن آئے گا امی جان تو میرا وعدہ ہے کہ میں اسے آپ کے پاس لاؤں گی۔ پھر دوستو دوسری جانب سلجوق محل دکھایا جاتا ہے، جہاں ایلچن خاتون بڑی غصے میں ہوتی ہیں اور بورچک کہتی ہیں، تیز سر کا مکب کو نقصان ہے، اپنے آپ کو تکلیف مت دے بیگم صاحبہ۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں، مجھے اس محل میں ہر روز ایک نیا کھیل نظر آتا ہے، اب وہ میرے مستقبل کا سودا کر رہے ہیں، میں کیسے یہ قبول کر سکتی ہوں؟ دوستو اسی دوران کچھ خادمائیں کمرے میں داخل ہوتی ہیں، اور ان میں فردوس بھی موجود ہوتی ہے، جو کہ مسکراتی ہوئی ایک صندوق کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں، یہ کیا ہے؟ فردوس کہتی ہے، تیرکن خاتون نے آپ کے لیے تحائف تیار کیے ہیں۔ ایلچن خاتون کہتی ہیں، کیسے تحائف؟ اتنے میں دوستو تیرکن خاتون خود کمرے میں داخل ہوتی ہیں اور ایلچن خاتون سے کہتی
कहती हैं, तुम्हारी शादी के लिए जहेज का संदूक ये मेरा खसूसी तोहफा है एल्चन खातून। इस महल से निकलते वक्त अपना सामान इसमें लेकर जाना। एल्चन खातून कहती हैं, आपके इरादों को मैं जानती हूँ तैरकन खातून, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी और ना ही किसी से शादी करूंगी। तैरकन खातून कहती हैं, तुम्हारी जबान पर गुस्सा है लेकिन अंदर से तुम रो रही हो, मैं जानती हूँ। तुम्हें मालूम है कि दुल्हन रोती है लेकिन वो रुखसत हो जाती है। यकीनन तुम्हारी सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, लेकिन ये गुस्सा करने की बात नहीं है। अब तुम्हारे लिए हंसना मुनासिब है और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हारी अबू कासिम जैसे मोअज़्ज़िज़ अमीर से शादी हो रही है। एल्चन खातून कहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन तैरकन खातून कहती हैं, फैसला करने वाली तुम नहीं हो। एल्चन खातून, अपने आप को संभालो। देखो, इसके अलावा तुम कैद से भी बच जाओगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अब जल्द से जल्द अपनी चीजें जमा करो क्योंकि तुम्हारा इस महल से जाने का वक्त करीब है। तैरकन खातून ये कहकर यहाँ से चली जाती हैं, जबकि एल्चन खातून संदूक खोलकर एक नजर इसे देखती हैं और फिर गुस्से से इसे बंद कर देती हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब जंगल में शाहबंदर दुकास दिखाया जाता है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता किसी की तलाश में आगे बढ़ता जाता है। लेकिन अचानक से कमांडर योरगोस आता है और दुकास की गर्दन पर खंजर रख कर कहता है, किस चीज की जल्दी है तुम्हें? शाहबंदर दुकास कहता है, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था योरगोस। दुकास अपना खंजर म्यान में रखता है और कहता है, तुमने मुझे बहुत बड़ी परेशानी में डाल दिया है। मेरी गर्दन कभी तलवार के इतने करीब नहीं रही है। निजामुल मुल्क हर जगह मेरा ताकुब कर रहा है। मैं उसे जानता हूँ। वो अपने दिमाग में शुबहात के बगैर हमें नहीं जाने देगा और तुम्हें भी ये सरजमीन छोड़ देनी चाहिए। सांजार तुम्हारा भी ताकुब कर रहा है। योरगोस फिर अपना खंजर शाहबंदर दुकास के मुंह पर रख कर इसे खामोश करा देता है और कहता है, दुकास, खौफ अकल का कातिल है। अगर मैं अचानक गायब हो गया तो असल में इस वक्त शक तुम पर होगा और निजामुल मुल्क समझ जाएगा कि तुम मुझे मालूमात फराहम करते हो। योरगोस अपने खंजर की नोक शाहबंदर दुकास के सीने पर रखता है और कहता है, अगर सांजार मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं इसे खूनी धमकी दूंगा, पहले इसके कबीले के लोगों को और फिर इसे। कमांडर योरगोस अपना खास सिपाही जैनून से कहता है, फौरन अपने आदमियों से कहो कि वो सांजार के कबीले के करीब वाली नदी में जाएं, वहाँ का पानी बहुत साफ है। जैनून मुस्कुराता है और कहता है, हम इस नदी में खून बहा देंगे। कमांडर योरगोस अपना सर हिलाता है, जबकि जैनून सिपाही मुस्कुराता हुआ यहाँ से चला जाता है। लेकिन शाहबंदर दुकास ये सब देखकर बड़ा परेशान होता है। दूसरी तरफ योरगोस अपने एक सिपाही से कहता है, हम मुकद्दस इमानतों के पीछे जाएंगे, सल्जूक और गद्दार बातनी इसकी सजा भुगतेंगे। कमांडर योरगोस अपने सिपाहियों के साथ यहाँ से चला जाता है, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सिपाही सांजार दिखाया जाता है। इस दौरान आइदोदो सिपाही कहता है, आखिरकार बातनियों की किछाड़ को बर्बाद करने का वक्त आ गया है। हम इस दिन का बहुत तवील अरसे से इंतजार कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, सांजार इस दौरान हाजी निजामुल मुल्क की बातों में ही कहीं गुम होता दिखाई देता है। आइदोदो सिपाही कहता है, सांजार तुम परेशान क्यों लग रहे हो भाई? सांजार कहता है, मैं ठीक हूँ आइदोदो। बोस्कोश फिर कहता है, मैं जानता हूँ कि सांजार तुम क्या सोच रहे हो। उड़ जा मेरे तूरना। सार्स अपनी मोहब्बत के वतन इस हसीना को बताओ कि तुम इससे मोहब्बत करते हो। सांजार मुस्कुराता है, जबकि बालाबंद सिपाही कहता है, तुमने तूरना खातून को खबर दी, इससे पहले भी इसने तुम्हारा नाम अमीर अल्तबर को नहीं बताया था। फिर सिपाही अयाज कहता है, हर आदमी की ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए सांजार, जो उसके साथ इस तरह ही खड़ी हो। सांजार अपना सर हिलाता है, लेकिन फिर दूर अंदेश अरसलान ताश कहता है, मगर हर आदमी एक जैसा नहीं होता है। कुछ बहादुर अपने अंदर ऐसी आग जलाए हुए हैं जो इनके सार्स जैसे फैलाए हुए परों को जला सकती है। सांजार ये सुनकर बड़ा परेशान हो जाता है, जबकि अरसलान ताश कहता है, मुझसे नाराज ना होना सांजार, हम दोनों एक ही घर में पले बड़े हैं, मैं तुम्हें सबसे बेहतर समझ सकता हूँ। अरसलान ताश फिर एक बालों की गुत्त निकालता है, जिसे इसने एक कपड़े के अंदर संभाल कर रखा होता है और सारे सिपाही
सिपाही ये देखकर बड़े परेशान हो जाते हैं, जबकि अरसलान ताश कहता है ये बाल इस लड़की के हैं जिससे मैं मोहब्बत करता था। इसकी मोहब्बत से मेरी आंखें चमकती थीं, लेकिन मेरे दुश्मनों ने मेरी इस चमक को छीन लिया। इसके खून को गले लगाने की बजाय काश वो हमेशा जिंदा रहती और मैं अपने दिल पर पत्थर रख लेता। सांजार ये सब सुनकर बड़ा गमगीन हो जाता है और फिर सांजार कहता है मुझे तुम्हारे इस नुकसान पर बहुत अफसोस हुआ है मेरे भाई। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे अंदर ऐसी आग लगी हुई है। अरसलान ताश कहता है निजामुल मुल्क ने तुम्हें क्या कहा है मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी ये कहा था। मैं कहता हूँ कि हमारे जैसे बहादुर जहाँ जरूरी हो अपने दिल की जगह दिमाग की सुने। अरसलान ताश फिर अपनी महबूबा के बाल वापस कपड़े में रख कर इसे संभाल देता है और सारे सिपाही इसकी बात से इत्तफाक करते हैं, जबकि सांजार फिर उठता है और अपने सिपाहियों से कहता है ये हमारी आज तक की बातनियों के खिलाफ सबसे बड़ी जंग होगी। बहराम ने आज हमें रिहा किया है। जंग से पहले कबीले जाकर हमें दुआएं लेने की जरूरत है। फिर दोस्तों सारे सिपाही अपने कबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं, जबकि फिर दूसरी जानब सल्जूक महल दिखाया जाता है, जहाँ बोरचिक खातून अपनी बेगम साहिबा एल्चन खातून के पास आती हैं और कहती हैं सुल्तान मलक शाह आपका इंतजार कर रहे हैं। एल्चन खातून तैयार होती हैं और फौरन सुल्तान मलक शाह की तरफ रवाना हो जाती हैं। एल्चन खातून सुल्तान मलक शाह के हजूर पेश होती हैं और सुल्तान एल्चन खातून से कहते हैं कल ईवान में आपका रवैया नाकाबिले कबूल था। क्या हमारी इंसानियत से आपको तकवीयत मिलती है? एल्चन खातून कहती हैं हम कितने बहादुर हैं आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। सुल्तान कहते हैं फिर तुम भी अंदाजा लगा सकती हो कि मैं कितने जलाल में हूँ। आइंदा अगर आपने इस तरह की गुस्ताखी की तो हमारी इंसानियत गजब में बदल जाएगी। आपको ये मालूम होना चाहिए। अब मुझे बताएं आप अबू कासिम से शादी क्यों नहीं करना चाहती? एल्चन खातून कहती हैं इसके साथ हमारी दुश्मनी पूरा जहान जानता है। मेरे साथ इनका ताल्लुक मेरे जज्बात से नहीं है, बल्कि मैंने अपने नस्ब को बरकरार रखने के लिए इसका इनकार किया है। अगर ये शादी हो जाती है तो अमीर अबू कासिम सिर्फ अमीर ही नहीं बल्कि अनातोलिया का हुक्मरान बन जाएगा और फिर कोतलामश की औलाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते कि भाइयों का खून बहाया जाए तो आप इसको रोकने की ताकत रखते हैं और फिर इस शादी की कोई जरूरत नहीं है। सुल्तान कहते हैं क्या यही सारी वजूहात हैं? एल्चन खातून कहती हैं एक और भी वजह है जो दीगर तमाम वजूहात से ज्यादा है और वो मेरे दिल में है। सुल्तान कहते हैं आपके दिल में क्या है? एल्चन खातून कहती हैं मुझे माफ करना मेरे सुल्तान, मेरे दिल में जो राज है इसे अफशा करना मुमकिन नहीं है। अगर इस राज का इंकशाफ हो गया तो बहुत से दिलों को नुकसान होगा। इसे पोशीदा ही रहने दें और इसी वजह से आप इस शादी की जब इजाजत देंगे तो इस दिन मेरी मौत का फरमान जारी करेंगे। मैं चाहती थी कि आप भी ये जान लें। सुल्तान कहते हैं तो तुम इससे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि अपनी जान को खतरे में डाल सकती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है। एल्चन खातून इसका कोई जवाब नहीं देती हैं, जबकि सुल्तान मलक शाह कहते हैं आप जा सकती हैं। एल्चन खातून फिर यहाँ से चली जाती हैं, जबकि दूसरी जानब किनक कबीले के नजदीक कबीले की खवातीन नदी के किनारे कपड़े धो रही होती हैं और कुछ सिपाही भी यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि खवातीन की हिफाजत पर मामूर होते हैं। इस दौरान एक लड़की अपने सामने मौजूद सिपाही को देखकर मुस्कुरा रही होती है और ये देखकर बाशोलो खातून फौरन इससे कहती हैं तुम दोनों की मंगनी हो गई है और मौसम बहार में हम तुम्हारी शादी की दावत खाएंगे इंशाल्लाह। लड़की कहती है इंशाल्लाह बाशोलो अम्मा। फिर दोस्तों बाशोलो खातून गुलपरी से कहती हैं बेटी हमने तुम्हें पाला पोसा है, तुम्हें झूला झुलाया है, मेरा रब एक नेक इंसान तुम्हें अता करे इंशाल्लाह। गुलपरी कहती हैं इंशाल्लाह बाशोलो अम्मी। इस दौरान दोस्तों सारी ही खवातीन काम में मसरूफ होती हैं, लेकिन इसी दौरान ज़ैनून के सिपाही यहाँ पर पहुँच जाते हैं और ज़ैनून फौरन सामने की तरफ का निशाना अपनी तीर कमान से लेता है और दोस्तों ये तीर लड़की के मंगेतर सिपाही के सीने में जा लगता है और ये किनक सिपाही पानी में जा गिरता है और ये देखकर लड़की चल
चिल्लाने लगती है, जबकि बाशोलो खातून और गुलपरी अपनी तलवारें उठा लेती हैं। बाशोलो खातून कहती हैं, खवातीन अपनी इज्जत के दिफा के लिए लड़ो। इतने में दोस्तों एक और तीर लगने से दूसरा कीनेक सिपाही भी पानी में गिर जाता है और बाजंतीनी सिपाही चारों अतराफ से खवातीन पर हमला करते हैं और बच जाने वाले 2 से 3 कीनेक सिपाही फौरन दुश्मनों का मुकाबला शुरू कर देते हैं। लेकिन इस वक्त तक बाजंतीनी सिपाही काफी सारी खवातीन को खून में नहला चुके होते हैं। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इधर गुलपरी और बाशोलो खातून बड़ी ही बहादुरी से दुश्मन सिपाहियों से लड़ती जाती हैं और दूसरी जानब कीनेक सिपाही अपनी इज्जत का दिफा करते करते शहीद होते जाते हैं, जबकि बाशोलो खातून एक वक्त में 2 से 3 सिपाहियों से लड़ती हैं और इन्हें काट कर परे फेंक देती हैं। दूसरी तरफ गुलपरी खातून फौरन अपनी एक बहन खातून को दुश्मन से बचाती हैं, लेकिन बाजंतीनी सिपाही उल्टा इसी पर हमला कर देता है और गुलपरी की तलवार नीचे गिर जाती है। दोस्तों बाजंतीनी सिपाही गुलपरी को मारने ही लगता है, लेकिन इतने में अचानक बाशोलो खातून फौरन यहाँ पर पहुँच जाती हैं और इसे हलाक करके गुलपरी की जान बचाती हैं। लेकिन इतने में 2 मजीद बाजंतीनी सिपाही आकर बाशोलो खातून से मुकाबला शुरू कर देते हैं, जबकि ये देखकर गुलपरी भी फौरन अपनी तलवार उठा लेती है और दुश्मन सिपाहियों से लड़ना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों एक सिपाही बाशोलो खातून की गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है और इनकी शाहरग काटने ही लगता है, लेकिन अचानक दूर से एक तीर आता है जो बाजंतीनी सिपाही के जिस्म से पार हो जाता है और गुलपरी खातून और बाशोलो खातून की जान जाने से बच जाती है। और दोस्तों ये तीर चलाने वाला बालाबंद सिपाही होता है जो कि बर वक्त सांजार के हमरा यहाँ पर पहुँच जाते हैं। बाशोलो खातून फौरन मुड़कर सांजार की तरफ देखती हैं, जबकि सांजार अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल कर फौरन चिल्लाता हुआ कहता है, हमारी बहादुर खवातीन की इज्जत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करने वालों के हाथ काट दो। बहादुरों किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। फिर दोस्तों सांजार के हसूसी सिपाही बाजंतीनियों पर कहर बनकर बरसते हैं। बालाबन मशीन की तरह कमान से तीर चलाता जाता है और दुश्मनों को जहन्नम वासल करता जाता है, जबकि बोस्कोश सिपाही अयाज, आइदोदो, अरसलान ताश और सांजार अपनी खवातीन की इज्जत का बदला दुश्मन सिपाहियों के सरों में तलवार घुसेड़ कर पूरा करते हैं। अरसलान ताश के कुल्हाड़े दुश्मन को तहस नहस कर देते हैं और फिर सांजार सारे दुश्मनों का सिफाया करके फौरन अपनी माँ के पास आता है और इन्हें गले लगाकर कहता है कि आप ठीक हैं अम्मी जान। बाशोलो खातून कहती हैं, मैं ठीक हूँ बेटा। सांजार कहता है, हमने करीब से गुजरते वक्त आपकी आवाजें सुनी थी, यहाँ बहुत ज्यादा जख्मी हैं, इन्हें जल्द से जल्द कबीले लेकर जाने की जरूरत है। इस दौरान अरसलान ताश फौरन एक टोपी उठाकर गुलपरी खातून को देता है और फिर फौरन सांजार से कहता है, ये डाकुओं के भेस में मलबूस हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ईसाई हैं। जाहिर है कि वो काफर मिखाइल के आदमी हैं। सांजार ये सुनकर बड़े गुस्से होता है, जबकि बाशोलो खातून फौरन अपने शोहदा और जख्मियों को कबीले लेकर जाने का इंतजाम करती हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।